Hello children, how are you all? I hope you all are great and having a wonderful time with your family. Welcome again to your English class. My name is Monica. So today in this video, we are going to learn about the chapter number 3 of English grammar. And in this chapter, we are going to learn about the uses of is, am or are. Is, am or are. So we are going to learn about the uses, यानी कि इसका use कहाँ होता है, किसके साथ होता है. The uses of is, am and are. Okay. So let me tell you a story. Once upon a time, in a town named Auxil. What is the name of the town? The name of the town is Auxil. There were three brothers. And the name of the three brothers were M, is, are. M, is, are. They were called auxiliary verbs brothers. What is the meaning of auxiliary? Auxiliary means helping verbs, जो हमारी help करते हैं. So इन्हें भी हम यही बोलते थे. So why they were called auxiliary verbs? Yes, they were called auxiliary verbs because they used to tell the information about the things which are in the present tense. Present means अभी, जो वक्त अभी चल रहा है. तो ये किस लिए यूज होती है? ये बताने के लिए, उन सेंटेंसेस को बताने के लिए, उन सिचुएशंस को बताने के लिए जो प्रेजेंट में है, यानी कि अभी है, इसी वक्त है. ओके, सो लो, डू यू नो, दो दे वर थ्री ब्रदर्स. जैसे आप लोग भी घर पे भाई बहन हैं, बट दे हैव डिफरेंट हॉबीज. जैसे आप लोगों की भी डिफरेंट हॉबीज होती है ना. आपके भाई को कुछ और पसंद होता है या सिस्टर को कुछ और पसंद होता है और आपको कुछ और पसंद होता है. सो सेम थिंग हियर, दे वर ब्रदर्स बट दे हैव डिफरेंट हॉबीज. So look at this brother. Okay, I was very shy and he had only one best friend. He had only one best friend. And the name of the best friend is I. So M like to hang around with I. जैसे आप लोगों के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सेम they were having their best friends. And M का फ्रेंड कौन था? Only I. Just look at the examples कि वो कैसे सिर्फ I के साथ ही बाहर जाता है. So look, जैसे I am a boy. I के साथ कौन आ गया? M. I am a boy. Look at the next sentence. I am a student. Again, I के साथ कौन आया है? M. I के साथ कौन आया है? M. I am a student. Okay. So now look at the second brother. Yes, the name of the second brother was is. Is liked to hang around with all the singular objects. So it had a great bonding with all the places, person, with all the singular place, person, animal, thing. Okay, so just look at the example. Like he कौन है? Singular, यानी कि boy. बॉय के लिए जो यूज करते हैं या मेन के लिए हम यूज करते हैं, ही यूज करते हैं. ओके, और गर्ल्स के लिए क्या यूज करते हैं? वेरी गुड, शी. सो ही इज. अब इसके साथ कौन घूमने गया है अभी बाहर? ही इज अ डॉक्टर. अब नेक्स्ट देखिए, द टेबल इज. The table means one टेबल की बात हो रही है ना. कितने टेबल की बात हो रही है? one. तो सिंगुलर मीन्स जो वन थिंग की ही बात करते हैं.
तो द टेबल, अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या यूज हुआ? इज। कौन बाहर घूमने आया है? इज। द टेबल इज रेड इन कलर। द टेबल इज रेड इन कलर। ओके, now look at the third brother, and the third brother was R. The third brother was R. R also like to hang with all the plural objects. So he has a great bonding with all the places, persons, things, animals, and some words also. You, we, they. Okay, so just look at the examples. Children. अगर one बच्चे की बात होती है तो हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड। और बहुत सारे बच्चों की बात होती है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? चिल्ड्रन। अब बिकॉज चिल्ड्रन इज मोर देन वन, यानी कि वो सिंगुलर नहीं रहा, क्या हो गया? प्लूरल हो गया। मेनी चिल्ड्रन आ गए ना इसमें। सो इट मीन्स चिल्ड्रन के साथ आर घूमने जाएगा। चिल्ड्रन के साथ कौन हैंग अराउंड करने जाएंगे? आर। सो चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। रोहन एंड मोहन। कितने पर्सन हो गए? 2 मीन्स मोर देन 1 मीन्स प्लूरल। तो प्लूरल के साथ अगेन कौन घूमने जाएंगे हैंग अराउंड करने? आर। So Rohan and Mohan are friends. Rohan and Mohan are friends. So अभी इस स्टोरी में आपने क्या देखा? So there was a town named Oxil. क्या नेम था टाउन का? Oxil. And in that town there were 3 brothers. How many brothers were there? 3 brothers. The name of the brothers are M is R. क्या नेम थे ब्रदर्स के? M is R. और M is और R के कुछ फ्रेंड्स थे। M का फ्रेंड कौन था? I. is के फ्रेंड all the singular objects, he, she, it, person, places, everything. And R का फ्रेंड कौन थे? All the plural objects. So just look at here. Look at here everyone. He, she, it, and all the singular nouns, all the singular place, person, thing, animal, इन सब के साथ we use is. क्या यूज करते हैं हम? is. क्या यूज करते हैं? is. yes. एंड I के साथ क्या यूज करते हैं? M. I के साथ M. वेरी गुड. We, you, they, and all the plural nouns, all the places, persons, yes, things and animals, we use are. We use are. अच्छा, अब आप बोलोगे कि you भी तो सिंगुलर है। You सिंगुलर है ना, बट यू जो है वो सिंगुलर होते हुए भी हम उसके साथ इज यूज नहीं करते। यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर पर्सन के बारे में भी बताता है और प्लूरल के बारे में भी बताता है। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस एक्सरसाइज। आई थिंक आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं अब किस किस को समझ में आ गया और कौन कौन मैम को आंसर करने वाला है जल्दी से। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स। और हमें इसमें ब्लैंक्स में क्या फिल करना है? 3 ब्रदर्स के नेम, इज, एम या फिर आर। ओके, सो लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। दिल्ली डैश the capital of India. अब ये देखिए दिल्ली, कितने प्लेसेस है ये? 2 प्लेसेस है या ओनली 1 प्लेस? यस, इट इज द नेम ऑफ द ओनली 1 प्लेस। इट मीन्स
सिंगुलर प्लेस, और सिंगुलर प्लेस के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज, एम या आर? टेल मी, सिंगुलर प्लेस के साथ? वेरी गुड, वी यूज इज, वी यूज इज. सो दिल्ली इज the capital of India. Very good. Now look at the second sentence. I dash going to park. I के साथ कौन आएगा घूमने के लिए, hang around करने के लिए? Come on, come on. Give me answer fast. Yes, we use am with I. So I am. I am going to park. I am going to park. Now look at the third sentence. The birds. S लग गया. It means more than one. Many birds. और many birds means plural. Yes. Now think about प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे? कम ऑन टेल मी. देखिए कहां पर राइट है प्लूरल? यस, हियर. एंड वी यूज आर विद प्लूरल नाउन. तो बर्ड्स प्लूरल है, इसके साथ हम यूज करेंगे आर. द बर्ड्स आर फ्लाइंग. द बर्ड्स आर flying. Very good. Now look at the next sentence. She. She किसके लिए यूज करते हैं हम? गर्ल्स के लिए, फेमिनाइन के लिए, वुमेन्स के लिए, है ना? तो she. she अब एक सिंगुलर पर्सन के लिए ही यूज होता है. अगर किसी एक लड़की की बात हो रही है, किसी एक की बात हो रही है, then we use she. अब सिंगुलर की बात हो रही है तो शी के साथ. यस, लुक हियर एंड टेल मी क्या आएगा शी के साथ? वेरी गुड, वी यूज इज विद शी. वी यूज इज विद शी. सो शी इज अ टीचर. शी इज अ टीचर. ओके, वेरी गुड. आप सबको तो समझ में आ गया. एंड यस, यू ऑल हैड आंसर्ड करेक्टली. और जिनके आंसर्स थोड़े से रॉन्ग हो गए हैं, दे विल जस्ट डू प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस करने से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, लेट मी टेल यू वंस अगेन. वी यूज इज विद ही, शी, it and all the singular noun. Okay, then we use am with I. We use am with I. Now next, we use are with we, you, they and all the plural nouns. Very good. I hope you all understood and learned about the uses of is, am and are. आ गया आपको समझ में? Okay, very good. If you are having any kind of query और कुछ भी doubt है, any kind of doubt, then you can call me and ask me. Then I will clear all the doubts. So now you will have to do the homework, the exercises A, B and C. Okay, I have mentioned the page number in your homework. So just look there, and after watching this video you will have to do that work. And if you are having, I am telling again, if you are having any kind of query, you can ask me. Bye bye.